take this opportunity to take, convey one message. May not be related completely to this case, but that, this was such a difficult case, and we were not certain of the outcome. But we took the risk, and somebody has got his life back. But many times we are faced with these kind of challenges in, in intensive or in complicated surgeries. So, what I feel that every, patient who is fighting for life deserves a doctor who can work without fear as well. So that is also very, very important that, everybody could work without fear and the outcome is good. So you as a opinion maker may convey this message as well that doctors usually try to do their best and results are not always good, but if they are good, everybody is happy. But if they are not, then also they are trying their best. Thank you. It's a sir mentioned this. To know that shunt fraction more than 20% is considered severe, but 67%. Not only the issue is shunt fraction, because there is very high vascular complication with this much of shunt fraction. But the patient have only one option of survival is liver transplant, because there is no medical treatment and other treatment for this kind of shunt fraction. So we decided and go ahead with liver transplant, and today after 45 days and 46 days down the line, child is off oxygen and doing activity like other normal children. हिंदी में भी बीस कर दो टोटल और हिंदी मीडिया एक हिंदी। अच्छा, मैं कुछ हिंदी में बोलता हूँ। देखिए, वाई दिस केस स्पेशल, मैं 3-4 बातें बताता हूँ। तो एक तो देखिए, इतने दूर से किसी कंट्री में जाके इलाज कराना इजी नहीं होता है, और चैलेंजेस क्या थे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, दूसरा डोनर। आई थिंक जहाँ तक मुझे बैकग्राउंड पता है, शायद उनके जो बच्चे के फादर थे पहले वो डोनेट करना चाहते थे, लेकिन शायद एंड में उन्होंने शायद जो मुझे पता है शायद लिवर डोनेशन से उन्होंने मना किया। इनके जो मैटरनल ग्रैंड अंकल थे, मतलब इनके मामा जो 54 ईयर ओल्ड थे, वो आगे आए, उन्होंने बोला ठीक है मैं दे दूँ, क्योंकि उनका ग्रुप बच्चे से मैच करता था। तो ये भी देखिए, आई मीन 54 ईयर के थे, अपने ग्रैंड मतलब चाइल्ड को उन्होंने डोनेट करने का फैसला लिया। अब देखिए, लिवर ट्रांसप्लांट एक बहुत बड़ी सर्जरी है, और जो कुछ कंट्रीज में जहाँ सक्सेसफुल सर्जरी होती है, इंडिया उनमें से एक है। इंडिया होगा, कोरिया हो गया, टर्की हो गया, इसलिए साउथ ईस्ट एशिया की बात करते हैं। तो हमारे कंट्री के लिए वो है कि इमेज एनहेंसिंग वो है कि इतनी डिफिकल्ट सर्जरी इंडिया में होती है। पहले बहुत लोग पाकिस्तान से आते थे, अभी बांग्लादेश, मिडिल ईस्ट, आई मीन बहुत अफ्रीकन कंट्रीज, सीआईएस कंट्रीज, बहुत जगह से आई मीन इंडिया में लोग डिफिकल्ट सर्जरी करवाने के लिए आते हैं, विच इज नॉट ओनली रेवेन्यू जनरेटिंग, हमारी जीडीपी को भी कंट्रीब्यूट करता है, एक कंट्री की इमेज को वो करता है। हाउ डिड यू फाइंड दिस पेशेंट? अदर हॉस्पिटल टर्न डाउन? नहीं सर, ऐसा तो नहीं है। आई थिंक दे सेंड रिपोर्ट्स टू मल्टीपल प्लेसेस, तो सर जहाँ पे उनको रिपोर्ट से सेटिस्फैक्शन मिलता है, हाउ मच यू रिप्लाई एंड ऑल दैट, सो दे सेंड द रिपोर्ट टू मल्टीपल प्लेसेस। ब्रेकिंग न्यूज़, इंडिया फर्स्ट सक्सेसफुल liver transplant with 67% shunt fraction. To the best of our knowledge. I would like, no, to the best of knowledge. I would like to write this headline. Are you sure that you are the first successful liver transplant? Or what happens to liver transplanting effect में है? नहीं, with 67 qualified kind of liver. Yes. What happens when we write this kind of headline? The next day we get telephone call. Yeah, no, it is not the first. So देखिए, are you sure that it is India's first successful liver transplant with 67% fraction? मेरे हिसाब से अगेन कर देखिए, अभी 100% तो नहीं बोल पाऊंगा, किसी सेंटर ने रिपोर्ट नहीं किया। कैसे करते हैं यही? ये रिपोर्टिंग नहीं है। This is all by literature search. We go online and search. When we write any article, this is review of literature. So there is no such report from India till now. So that's how. Sure. So by seeing that if somebody has done but has not reported it now, that we don't know. I can use this headline as for best of our. That's why we say best of our knowledge. नहीं यूज करना पड़ेगा, बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज। कल कोई भी आगे बोलता है तो हमने किया है, लेकिन उन्होंने रिपोर्ट नहीं किया तो हमारे लिए नहीं। आया ये गलत साबित होता है। ये claim, this kind of claim, most of the time is wrong. I
don't know, sir. And we are. And you would not have been training like this, and you would not have been training like this अगर हमें लगता कि 67 पर, क्योंकि सर 2-3 सेंटर्स हैं जो कॉम्प्लेक्स ट्रांसप्लांट करते हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, NCR में और एक चेन्नई में है। तो जिन लोगों से हमने NGM नहीं है, NGM तो अभी नया ट्रांसप्लांट सेंटर शुरू हुआ है, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन जिनसे हमने मेजर सेंटर से बात करी, तो उन्होंने किसी ने 67% शंट में ट्रांसप्लांट नहीं किया है, 35% किसी ने किया है। आई मीन एक बड़े सेंटर ने बोला हम कैलकुलेट नहीं करते हैं शंट फ्रैक्शन, बच्चे को 10 लीटर ऑक्सीजन था, which is a big, I mean, I am not pulling your leg. I want to use this headline. नहीं सर वो मैं समझ गया। That was why I had to confirm that. नहीं, I understood your point, but if somebody has not reported to me, it's the first in India. Because reported नहीं है, कई लोग होते हैं जो रिपोर्ट ही नहीं करते हैं उनके पास टाइम, बट जैसे 2-3 बड़े सेंटर्स के पेपर्स आए हुए हैं, उनके अंदर जो भी उन्होंने पेशेंट किया उसमें किसी का भी शंट फ्रैक्शन इतना नहीं है। डॉक्टर स्वाइन का तुरंत फोन आ जाता है। डॉक्टर स्वाइन के सेंटर से एक पेपर है, उसमें 35% That is why हमको कंफर्म हमने लिटरेचर सर्च किया है उसमें नहीं। इसके लिए मैंने रिपोर्ट नहीं किया, हमने क्लेम नहीं करा, हम नहीं फोन करते हैं, मतलब कुछ चीजें हमने पहली बार करी है, अगर किसी और ने रिपोर्ट करी है और हमने नहीं करी तो हम किसी को फोन करके नहीं बोलते हैं, बिकॉज लीगल राइट नहीं बनता है। ये आपका पहला लीवर ट्रांसप्लांट है? नहीं पहला लीवर ट्रांसप्लांट। हाउ मेनी लीवर ट्रांसप्लांट यू हैव डन सो फार? As a team of work, I mean, we work as a team. I have been a part of, I was in Apollo Hospital in the past, so I've been a part of, I mean, close to 1800 liver transplants till date. In Artemis? Artemis Hospital में around 300-400 transplants हैं। 350। लेकिन बच्चे के एक ट्रांसप्लांट में कितने घंटे का समय लगता जी? है? कितने घंटे? Time around 14-16 hours के around है। 14 hours के आसपास में time लगा बच्चे के साथ। अच्छा, ये अचानक देख रहा हूँ मैं कि लीवर ट्रांसप्लांट के सेंटर्स like IVF centers, you find in every hospital लीवर ट्रांसप्लांट होता है, सक्सेस रेट क्या इतना है? I want the larger picture in terms of success rate, in terms of donor death, because that is very serious. वंडरफुल क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप, बट मैं आपको बताऊँ सर जी कि जहाँ नंबर की बात है, अभी भी इंडिया में लिवर ट्रांसप्लांट सेंटर बहुत कम है, 130 फॉर सच ए पॉपुलेशन ऑफ 1.3 मिलियन। तो आपको ये कैसे लगा, आपको कैसे लगा कि लिवर ट्रांसप्लांट के सेंटर जाना है? हर जगह ले रहे हैं वो सरकार आपको किस डेटा पे बेस दिया है कि लिवर ट्रांसप्लांट देयर वाज ए टाइम एम्स ने पहला किया, फेल हो गया, नहीं किया गया था, नहीं चेन्नई में किया गया था, जो हमको यही मालूम है। चेन्नई आपने किया तो हो गया, मैंने मान लिया, इसमें बहस की गुंजाइश नहीं है। लेकिन बाद में स्वाइन ने शायद इंडिया में सबसे पहला लीवर, उसके पहले बहुत लोग मरे, बड़ी दिक्कत से हुआ। एक डॉक्टर को तो मौत का डॉक्टर कहते थे लीवर ट्रांसप्लांट के फेलियर की वजह से, और जो नाम मैंने लिया वही डॉक्टर थे, वो समझ गए। तो इतना सक्सेस रेट बढ़ गया कि हर हॉस्पिटल अब लीवर ट्रांसप्लांट नहीं, हर में नहीं हो रहा है, दिल्ली में एनसीआर में कितने हॉस्पिटल हैं, मेरे हिसाब से तो कितने हॉस्पिटल हैं, 10 से 12 हॉस्पिटल में ट्रांसप्लांट होता है। इतना स्किल्ड हैंड है हमारे पास, ये नहीं स्किल हैंड है तभी चल रहा है, वरना चलता नहीं ट्रांसप्लांट सेंटर। अगर आपको ये वायरल नहीं किया, बाकी कंट्रीज से यहाँ पे पेशेंट आ रहे हैं लिवर ट्रांसप्लांट के लिए, अगर इंडिया में तो मान सकते हैं कि चलो यहीं के लोग आ रहे हैं, लेकिन जब बाकी दुनिया के देशों से लोग यहाँ पे ट्रांसप्लांट कराने आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये एक बड़ा सेंटर है लिवर ट्रांसप्लांट का इंडिया। पिछले 15 सालों में हर चीज की इम्प्रूवमेंट हुआ है मेडिकल फील्ड में, नॉट ओनली लिवर ट्रांसप्लांट बट बोन मैरो ट्रांसप्लांट, कार्डियक सर्जरी और ऑन्को सर्जरी, हर चीज इम्प्रूव हुई है। तो उसी तरह से लिवर ट्रांसप्लांट की भी जो एक्सपर्टीज है वो काफ़ी इम्प्रूव हो गई है। कई लोग जो यंग डॉक्टर्स हैं अब वो ट्रेन होके आ रहे हैं, अब उनकी ट्रेनिंग भी यहाँ होने लगी, तो जो लोग यहाँ पे काम करते हैं वो ट्रेन करते हैं, दूसरी जगह जाते हैं। तो अभी भी पूरे कंट्री में अराउंड 100 सेंटर्स हैं जहाँ पे लिवर ट्रांसप्लांट होते हैं। तो ये एक इतनी बड़ी कंट्री के लिए ये अभी भी कम है, लेकिन धीरे धीरे संख्या इम्प्रूव हो रही है। और जो सक्सेस रेट की है वो डॉक्टर बोला बताएंगे, लेकिन बच्चों में ज्यादा है, एडल्ट में नहीं एडल्ट में ज़्यादा है, बच्चों में कम है। बच्चों की सर्जरी और भी डिफिकल्ट होती है, जो बच्चों के सेंटर तो बहुत ही कम है। तो जो सक्सेस रेट है लिवर ट्रांसप्लांट का ओवरऑल वो भी काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो गया है।
और उसके एग्जैक्ट नंबर डॉक्टर बोला बताएंगे उनकी जो एक्सपीरियंस। बच्चों में एक टोटली डिपेंड कि किस रीजन के लिए आप लिवर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं और सब उस पर डिपेंड करता है। तो अगर एक्यूट लिवर फेलियर है किसी को, एक्यूट का मतलब है कि कोई इन्फेक्शन हुआ, जो बच्चों में कॉमनेस्ट रीजन हेपेटाइटिस के इन्फेक्शन होता है, उसके कारण लिवर फेलियर है और वो नहीं इम्प्रूव कर रहा है, उसका जो सक्सेस रेट इज अराउंड 95%। बट अगर कोई छोटा बच्चा है जिसको कि क्रॉनिक इलनेस है या बिलियरी अटेरिया है या उसके लिवर के बनावट में कोई इश्यू है, एज कम है, उन पेशेंट का आउटकम इज क्लोज टू 90 to 92%। उनके अंदर कॉम्प्लिकेशन होने का चांस ज़्यादा होता है क्योंकि वो ऑलरेडी एक डिजीज लिवर है, डिजीज शरीर है, उससे पहले से ही बहुत कॉम्प्लिकेशन है। सो आउटकम टोटली डिपेंड्स कि पेशेंट की स्टेज ट्रांसप्लांट से पहले कैसे है। और नहीं करें सो फॉर एडल्ट एडल्ट के अलावा मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा, जैसे मैंने बताया, अगर हम इस साउथ ईस्ट एशिया की बात करते हैं, क्या करते हैं, कोरिया और इंडिया पूरे वर्ल्ड में लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांट के लिए पहचाने जाते हैं। सो वी मे क्वेश्चन मल्टीपल थिंग्स बट वी हैव टू सी हाउ दिस ट्रांसप्लांट हैज enhance the image of country। आज इतने पब्लिकेशन होते हैं, बहुत सारे वर्ल्ड लेवल में पब्लिकेशन होते हैं, वो इंडिया से होते हैं, लिवर ट्रांसप्लांट के ऊपर होते हैं। तो इतना चेंज हुआ है लास्ट 5 to 10 years में। इंडिया का एक इमेज एनहेंसिंग, मेडिकल टूरिज्म इमेज एनहेंसिंग थिंग। सो 3-4 years डाउन द लाइन पाकिस्तान से सब लोग ट्रांसप्लांट कराने इंडिया आ गए थे। इनफैक्ट व्हाट आई वाज सेइंग, अभी शहबाज शरीफ का फर्स्ट जो उन्होंने स्पीच दी, तो यू कैन उनका टेक्निकली ये जो बोलते हैं लिवर ट्रांसप्लांट माना जाता है पाकिस्तान में, सब कुछ वहाँ पे होता है लेकिन ट्रांसप्लांट प्रोग्राम कभी सक्सेसफुल नहीं रहा। फर्स्ट स्पीच में उन्होंने क्या मेंशन किया कि नवाज शरीफ साहब ने लिवर किडनी इंस्टीट्यूट खोला पाकिस्तान में, बट जो भी उनका इंटरनल पॉलिटिकल इशू था, जो भी था, उसमें ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल नहीं हो पाया। एंड व्हाट वाज सेड इन द फर्स्ट स्पीच बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री कि अभी भी पाकिस्तान के लोगों को 50,000 रुपया खर्च करके इंडिया जाना पड़ता है। सो यू कैन इमेजिन द काइंड ऑफ सक्सेस इंडिया हैज डेवलप्ड मेडिकली एंड स्पेशली इन द फील्ड ऑफ लिवर ट्रांसप्लांट। तो बहुत सारी चीजें अभी हर कंट्रीज में होती हैं, लेकिन ट्रांसप्लांट अभी भी इससे कॉम्प्लेक्स है। एंड अभी भी इतने कंट्रीज के लोग हमारे यहाँ आते हैं कि वी हैव ट्रांसप्लांटेड पेशेंट्स फ्रॉम मोर देन 20 कंट्रीज इन द वर्ल्ड। तो दिस इज समथिंग व्हिच इज हमारी एक पत्रकार मित्र थी उषा जी, उनका ट्रांसप्लांट नहीं हुआ, सक्सेसफुल नहीं हुआ जी। वो पत्रकार की बहुत जानी मानी पत्रकार जी। हम लोगों ने तमाम प्रयास किए, मैप्स वैशाली में। आपको सवाल है तो पूछिए। अरे हम पहली बात करते आपको पूछो दूसरी बातें भी बोलना चाहूँगा जो कि पॉजिटिव साइड ऑफ कल वर्ल्ड लिवर डे है, तो वी कैन डिस्कस मैनी थिंग्स। अब देखिए बच्चे को हमने कैसे हेल्प करी जब ये आए थे, लॉट ऑफ फाइनेंशियल इशू। मैनेजमेंट ने कॉल ली कि बच्चे का ट्रांसप्लांट हम फाइनेंस पे रोकेंगे नहीं। एंड आई थिंक पीछे एडमिनिस्ट्रेशन के और काफ़ी लोग हैं, इसमें हॉस्पिटल ने काफ़ी कॉन्ट्रीब्यूट किया है फ्रॉम देयर साइड। एंड ऐसा भी कुछ था नहीं कि ये बच्चा सर्वाइव करेगा नहीं करेगा, बट ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड हॉस्पिटल कॉर्पोरेट हॉस्पिटल है, लेकिन उन्होंने बोला जो भी होगा, जो भी बच्चे का एक्सपेंसेस होगा बियॉन्ड अ सर्टेन थिंग, बिकॉज इट्स अ वेरी कॉस्टली ऑपरेशन। जो गैस यूज करी उसी का 1 लाख रुपये पर डे का खाली रेंटल था। तो समटाइम कैन बी सेइंग मेडिकल सर्विस महंगी है, तो बिकॉज कॉस्ट ऑफ थिंग्स आर सो एक्सपेंसिव। तो जो गैस यूज करी शायद 15 दिन नाइट्रिक ऑक्साइड यूज किया, उसी का कॉस्ट अराउंड 15-16 लाख रुपये था, जो कि आई थिंक एक्सीडेड द कॉस्ट ऑफ व्हाट वी सॉर्ट ऑफ एंटायर ट्रांसप्लांट। तो हॉस्पिटल ने आगे आके सपोर्ट किया और आई मीन देयर आर सो मेनी पॉजिटिव्स। तो आई मीन और जहाँ तक सर्वाइवल की बात है, इट्स क्लोज टू 90%। तो 1 year सर्वाइवल इज 90% और 5 year सर्वाइवल 80% के बीच में होता है। एंड इनफैक्ट अगर कोई पेशेंट को री प्रॉब्लम, अगर दोबारा भी प्रॉब्लम होती है, तो नॉर्मली यू कैन री ट्रांसप्लांट हो, किसी पेशेंट का रीडू ट्रांसप्लांट नहीं किया जाता है। सर ये इसमें ट्रबल को कॉस्ट एक्चुअली मुझे आने आप डायरेक्ट करता हूँ, कॉस्ट वाला पार्ट मेरे को एक्चुअली नहीं है। दिव्या कॉस्ट वाले पार्ट पे कुछ बोलना चाहोगे? We are here to help people. That cost we are taking for them. We are here to help people. Yeah, we want And we want to know one thing that मैं मेडिकल पार्ट बोल सकता हूँ, अनफॉर्चुनेटली cost is very prohibitive, I tell you.
must succeed. This 60% transplant, liver transplant has no scope of failure. because 40-50 लाख खर्च हो जाते हैं, कौन अफोर्ड करेगा? नहीं सर, ये तो ये हमारे नहीं हॉस्पिटल तो ये बताएं जो उनके डोनर्स थे, जो उनके डोनर हैं, उनके मामा रिलेटिव जो है डोनर है, वो क्या आपके हॉस्पिटल में ही एडमिट थे, उनको वहीं खुद बुलाया गया या उन्होंने कितना उनको क्या ट्रीटमेंट दिया गया, उनको कितना % आपने उसको स्कोप में लिया, कितना % उसको? अराउंड इनका 55%। लेकिन यूटीआई के लिवर ही जनरेट कर जाता है दोबारा ये सब नहीं रहा कि एज रेशो है जो उसमें कहीं डिफिकल्ट आई है, वो एज 55 की हाँ जिनका नॉर्मल रहता है। सर रेगुलर अगर ये चीज़ें रही हैं तो क्या ट्यूबरकुलोसिस की भी इफेक्ट नहीं हो सकते थे उसमें कहीं? नहीं थे। Good afternoon, everyone. I was referred by an agent to Dr. Raul, who told us about Dr. Bora. So there are, different medical companies, which help people in getting visa and advise them regarding which are the hospitals where they can get these kind of. I asked this. How did you find this person? She answered. I already asked this question. I wanted to know about liver. When it's in India, the men are facing more failure, or is it the women also are, or they are not at risk? Can you clarify? Men have slightly higher incidence because it's alcohol का जो थोड़ा मिल जेंडर में ज़्यादा है compared to female. और अभी सर हम देख रहे हैं धीरे-धीरे इंडिया में नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज भी बड़ा कॉमन है. फैटी लिवर विच नेचर टर्न्स ऑन टू सिरोसिस. और एक साइड में थोड़ा बायस भी है जो हम देखते हैं बिकॉज थोड़ा जो आई थिंक मेडिकल केयर है वो शायद अभी भी मेल को ज़्यादा वो दी जाती है ट्रांसप्लांट करने के लिए. फीमेल को भी शायद मेरे हिसाब से I was watching a program just day before on the television. So this person, he's kind of a doctor. So he was saying that the female population during their periods, so they are taking carbohydrates, which is leading to kidney diseases. So ultimately, when kidney diseases there, it's not filtered, then liver would be automatically in the line, So for that reason, does it really affect what he said? Healthy lifestyle है जैसे हम कार्बोहाइड्रेट को बोलूँगा नहीं मैं फैटी लिवर में बोलना चाहूँगा. So they are not eating lot of junk foods and all that. Sedentary lifestyle है. So all these will contribute to liver disease. सर ये इस बच्चे को जो समस्या हुई लिवर उसका मेन कारण क्या था? ऐसा है सर उसको हमने पूरा इवेल्युएट किया. जो भी बच्चों इस एज के बच्चे में लिवर डिजीज के जो कारण होते हैं उनके लिए स्पेसिफिक फैक्ट्स होते हैं. ऑटो इम्यून होता है, कुछ मेटाबॉलिक इश्यूज होते हैं. इनके जो भी टेस्ट हम लोगों ने कराए कारण के, चाहे से वो इन्फेक्शन के लिए थे या बाकी कारण के लिए थे, वो सब नेगेटिव थे. तो बेसिकली तो देयर इज वन सेट ऑफ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर हमें कोई कारण नहीं मिलता है. उनको हम लोग इनडिटर्मिनेट कॉजेज के अंदर रखते हैं. दैट ग्रुप इज स्टिल देयर. तो वो कॉज इनका क्या था लिवर का, जितने टेस्ट हमने कराए वो सारे नेगेटिव थे. सो द चाइल्ड इज स्टिल फिटिंग इनटू इनडिटर्मिनेट सिरोसिस. वी डोंट नो द कॉज. कि अगर लिवर जैसा कि आपने बताया कि माता ने मना कर दिया कि हल्का नहीं है, अगर हल्का भी आएंगे तैयार नहीं होते हैं तो कुछ प्लान भी तैयार था नहीं सर. अगर देखिए इंडिया में ऑर्गन ट्रांसप्लांट रूल है तो हॉस्पिटल को फॉलो करना ही होता है. ओनली कोई रिलेटेड बंदा या उसके अलावा अनरिलेटेड या और कोई बंदा डोनर नहीं बनता. कैडेवर तो सर इंडियन पेशेंट को ही नहीं मिलता है. कोई लॉन्ग इशू तो फॉरनर को तो लिवर तो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल. they can get registered according to the transplantation of human organ, but they can get an organ only if there is no taker from India. वो लिवर में होता है. सर रिपोर्ट से कहती कोरोना के बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन
लीवर में हुआ था ब्लैक स्पॉट और हर तरह के दाग धब्बे भी बहुत नजर आए थे और रिपोर्ट ऐसी देखी गई थी। क्या इस बच्चे में भी उसका असर था कोरोना का या हुआ था या कुछ इस तरीके से? नॉर्मली जो कोरोना से जो लिवर इंजरी थी वो बेसिकली एक्यूट इंजरी थी मोस्ट ऑफ द केस, और बच्चे को तो क्रॉनिक लिवर प्रॉब्लम था जिसको सिरोसिस बोलते हैं। तो कोरोना का तो उसमें कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है। सर जो सेंस दैट फैटी लीवर की वजह से भी इंडिया में मेल या एडल्ट को लीवर ट्रांसप्लांट या लीवर फेलियर हो रहा है, इज इट समथिंग टू डू विद द ऑयल, maybe the palm oil or something like that? What is your suggestion on that? Actually मैंने बोला एक्जैक्टली एक किसी फूड पे पिनपॉइंट करना तो बड़ा मुश्किल है, बट ये है कि ईटिंग अनहेल्दी फूड लाइक लॉट ऑफ जंक फूड, लॉट ऑफ कैलोरीज, जंक कैलोरीज होती हैं जो कि कोल्ड ड्रिंक्स में होती हैं या आप जो फास्ट फूड खाते हैं। सो दोज आर द इनडायरेक्ट कॉन्ट्रीब्यूटर। लेकिन फैटी लिवर में थोड़ा जेनेटिक कंपोनेंट भी है। तो जैसे अगर किसी फैमिली में अगर फादर या मदर को है तो बच्चों को ये बीमारी होने का चांसेस भी है। इनफैक्ट बहुत सारे पेशेंट जब ये फैटी लिवर के कारण सिरोसिस से हमारे पास में आते हैं और अब दोनों का एवेल्युएशन करते हैं, तो जैसे यंग बच्चे हैं 25, 26, 30 हैं, हम टेस्ट करते हैं तो उनको पता नहीं होता है पर उनके SGOT, SGPT पड़े हुए होते हैं। फिर हम अल्ट्रासाउंड करते हैं या फाइब्रो स्कैन करते हैं तो उससे पता चलता है लिवर में फैट का कंपोनेंट ज़्यादा है। और ऐसा देखा गया है कि फैमिली में दूसरा डोनर आया, तीसरा डोनर आया और सभी लोगों को फैटी लिवर की बीमारी होती है और इसका कोई सिम्टम होता नहीं है अनफॉर्चुनेटली अर्ली स्टेजेस में। जब बहुत एडवांस स्टेज में बीमारी चली जाती है, सिरोसिस हो जाता है, तभी मोस्ट ऑफ द टाइम ये डायग्नोज होता है कि आप पेशेंट को व्हेन यू कम टू नो द फैमिली हिस्ट्री। और दूसरा है कि एसोसिएशन होता है। मान लीजिए किसी को डायबिटीज है और थायराइड की प्रॉब्लम भी है और ओबेसिटी भी है, तो ये एक कॉम्बिनेशन होता है जिसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम बोलते हैं बेसिकली। तो अगर किसी को डायबिटीज है तो उसको चांसेस है कि उसको फैटी लिवर होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। सर अभी तक कब तक प्रोफेशन में देखना पड़ेगा इनको कि और क्या दवाइयाँ कब तक इनकी चलती रहेगी, कैसा रहेगा? अभी बच्चे को तो रेगुलर टेस्ट कराना होंगे, तो ये हमें टेस्ट करा के मेल से भेजते रहते हैं और हम उनको